سے پہلے آپ کو بتائیں، لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی اور جسٹس شاہد جمیل پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پر عدم اطمینان کا اظہار۔ عدالت کا کہنا ہے اگرچہ قانون سازی کا نہیں کہہ سکتے، لیکن جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ وفاقی اور پنجاب حکومت کو جواب کے لیے 26 جنوری تک مہلت۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی اور جسٹس شاہد جمیل خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پر عدم اطمینان کا اظہار۔ عدالت کا کہنا ہے کہ اگرچہ قانون سازی کا نہیں کہہ سکتے، لیکن جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں، لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی اور جسٹس شاہد جمیل خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پر عدم اطمینان کا اظہار۔ عدالت کا کہنا ہے اگرچہ قانون سازی کا نہیں کہہ سکتے، لیکن جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ بات کرتے ہیں ملک اشرف سے۔ ملک اشرف، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی صدارت میں 2 رکنی بینچ نے سابق میئر فیصل آباد محمد رزاق ملک سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی، تو عدالت میں سیکرٹری بلدیات، الیکشن کمیشن کے نمائندے سمیت دیگر پیش ہوئے، جس پہ جسٹس شاہد جمیل خان نے استفسار کیا کہ بتائیں کہ کیا جو لوکل باڈیز ہے اس کے حوالے سے کیا شیڈول کا اعلان کیا گیا، جس پہ عدالت کو بتایا گیا کہ ابھی تک شیڈول کا اعلان نہیں کیا گیا، جس پر جسٹس شاہد جمیل خان نے کہا کہ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کس طرح ایڈمنسٹریٹرز کو دیے جا سکتے ہیں۔ مزید یہ بھی کہا کہ آرڈیننس جو ہے اس کی مدت کتنی ہے، جس پہ عدالت کو بتایا گیا کہ اس کی مدت 3 ماہ ہے اور یہ مارچ کو ختم ہو جائے گی۔ جسٹس شاہد جمیل خان نے کہا کہ اگر یہ آرڈیننس جو ہے اس کی بنیاد پہ کیسے حلقہ بندیاں کی جا سکتی ہیں، اگر یہ آرڈیننس ہی کلیپس کر جائے تو ان حلقہ بندیوں کی کیا اہمیت رہے گی۔ مزید جسٹس شاہد جمیل خان نے یہ بھی ریمارک دیے کہ اگرچہ عدالت جو ہے آئین سازی کا یا قانون کا بنانے کا حکم نہیں دے سکتی، لیکن جس طرح آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس پہ عدالت کیسے خاموش رہ سکتی ہے۔ جیسے شاہ جمیل خان نے یہ بھی کہا کہ لوکل آرڈیننس بنایا گیا ہے، اس میں بہت سی شکیں ایسی ہیں جو آئین سے متصادم ہیں، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت میں ایڈیشنل جنرل پنجاب جو ہے وہ بھی عدالت میں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، اور انہوں نے عدالت سے مزید مہلت کی، جس پہ جسٹس شاہ جمیل خان نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس معاملے میں چیف سیکرٹری پنجاب کو اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کر لیں۔ تاہم عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ 26 جنوری کے لیے ملتوی کی ہے، اور محمد رزاق ملک جنہوں نے استدعا کی تھی کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، جس پر عدالت وفاقی حکومت کو اور پنجاب حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے آئندہ سماعت تک کے لیے مہلت دی اور فری کہنے کے وکلاء کو حتمی بحث کے لیے طلب کیا ہے۔ سماعت 26 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ملک اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پنجاب کی ڈرگ کورٹس کے چیئرمین کے عہدے کی شرائط ملازمت پر غور۔ وزیر قانون کا چیئرمین ڈرگ کورٹ کے حوالے سے عدالتی فیصلے سے رہنمائی لینے کا فیصلہ۔ وزیر قانون کی شرائط ملازمت پر ہائی کورٹ کے احکامات مد نظر رکھنے کی ہدایت۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پنجاب کی ڈرگ کورٹس کے چیئرمین کے عہدے کی شرائط ملازمت پر غور۔ وزیر قانون کا چیئرمین ڈرگ کورٹ کے حوالے سے عدالتی فیصلے سے رہنمائی لینے کا فیصلہ۔ وزیر قانون کی شرائط ملازمت پر ہائی کورٹ کے احکامات مد نظر رکھنے کی ہدایت۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عمران اسلم سے۔ عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس میں پنجاب کی ڈرگ کورٹس کے چیئرمین کے عہدے کی شرائط ملازمت پر غور کیا گیا۔ وزیر قانون پنجاب کی جانب سے چیئرمین ڈرگ کورٹ کے حوالے سے عدالتی فیصلے سے رہنمائی لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا، اور وزیر قانون نے شرائط ملازمت پر ہائی کورٹ کے احکامات کو مد نظر رکھنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ صوبے میں 6 ڈرگ کورٹ قیام کی منظوری دی گئی تھی۔ فیصل آباد میں دیگر اضلاع میں بھی جو ہے وہ ڈرگ کورٹس قائم کی گئی ہیں۔ فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور میں بھی ڈرگ کورٹس قائم ہیں، جبکہ ڈرگ کورٹس کے چیئرمین کی اہلیت ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوتی ہے۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ کے حوالے سے عدالتی فیصلے سے ہی رہنمائی لیں گے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ڈرگ کورٹس محکمہ پرائمری ہیلتھ کے انتظامی کنٹرول میں کام کرتی ہے۔ چیئرمین ڈرگ کورٹس کی شرائط ملازمت میں ابہام دور کیا جائے گا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر پروسیکیوشن سیکرٹری خزانہ سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین کی ملازمت میں ابہام دور کیا جائے گا۔ عمران اسلم، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تھانہ صدر کے علاقے رحمان گارڈن میں 13 سالہ گھریلو ملازمہ کے ساتھ مبینہ زیادتی۔ 4 ماہ بعد بھی زیادتی کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ متاثرین پولیس کے خلاف سراپا احتجاج۔
थानों और पुलिस अफसरान के दफातर के चक्कर लगाने के बाद एहतजाज करने पर मजबूर हुए। मुतासरीन की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। थाना सदर के इलाका रहमान गार्डन में 13 साल घरेलू मुलाजमा के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया। सदर पुलिस ने 4 माह बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया तो लवाहिकीन सरापे एहतजाज बन गए और जिला कौंसिल चौक ब्लॉक करते हुए पुलिस के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुतासरीन का कहना था पुलिस इंसाफ की फराहमी में रुकावट है। हमारे बंदे आए शादी की सुनी कोई नहीं, हर बात ऐसी गया शादी की सब नहीं सुनी, सब धक्के दे के बाहर काट चल साला। 13 साल साइमा को मालिक मकान ने मुबैना ज्यादती के बाद घर से निकाल दिया। लवाहिकीन मुलाकात के लिए पहुंचे, बच्ची को घर ना पाकर पुलिस को कॉल की। पुलिस ने बच्ची को 4 रोज बाद ढूंढा। 13 साल साइमा ने बताया 50 साल मालिक मकान उस्मान शेख ने ज्यादती का निशाना बनाया। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਵਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ। 2 ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭੇਜੀ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सदर पुलिस ने नामजद मुलजिम के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर रखा है। लवाहिकीन का कहना था ज्यादती की दिफात शामिल की जाएं। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। आपको बताएं, फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से महंगाई के खिलाफ रैली की तैयारियां। लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील के दफ्तर में मीटिंग का इनेकाद किया गया। इतवार के रोज रैली के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से महंगाई के खिलाफ रैली की तैयारियां। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा कहां तक पहुंची हैं तैयारियां? जब बात की जाए मुस्लिम लीग नून की जानब से रैली का इनेकाद किया जा रहा है महंगाई के खिलाफ। चौधरी शेर अली की क़यादत में, इसके अलावा लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील की क़यादत में और दीगर जो इनके रहनुमा उनकी क़यादत में ज़िला कौंसिल चौक से रैली निकाली जा रही है हुकूमत के खिलाफ। तो इसी हवाले से मज़ीद भी जानते हैं। मियां ताहिर जमील एमपीए हमारे साथ मौजूद है। मियां सब क्या प्लान है, क्या रैली के हवाले से बताइए। देखें जी, आवाम जो है वो आवाम की डिमांड है कि इस हुकूमत को आप चलता करें, क्योंकि इस हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम परेशान है। चाहे कोई फैक्ट्री वाला है, चाहे कोई मज़दूर है, चाहे कोई रेड़ी बान है, चाहे कोई रंग साज है, चाहे कोई कारपेंटर है, तमाम जो शोबा हाय के लोग हैं वो तमाम के तमाम अपनी अपनी जगह पे अपने घरों में भी परेशान हैं और बाहर कारोबार में भी परेशान हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बिजली के रेट आसमानों से बात कर रहे हैं, गैस के रेट आसमानों से बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखें कि टैक्सेस की भरमार है। एफबीआर ने जो जुल्म ताजरों पर और छोटे दुकानदारों पर ढाए हैं उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में आपको नहीं मिलती। तो इन इक़दामात के ख़िलाफ़ हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों के साथ इंशाल्लाह 16 जनवरी को 2 बजे यहाँ से रवाना होंगे और ज़िला कौंसिल चौक पहुँचेंगे। वहाँ पर चौधरी शेर अली साहब के हमरा हम पैदल मार्च करेंगे। चौक घंटा घर में मरकज़ी हमारे लीडर चौधरी शेर अली साहब का ख़िताब होगा और हज़ारों कारकुन आप देखेंगे कि फैसलाबाद की तारीख़ में इस तरह की रैली पहले नहीं निकली होगी। मेरी कारकुनों से आपके प्लेटफार्म से भी अपील है कि खुदा के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इस धरती माँ के लिए, इन ज़ालमों से छुटकारा हासिल करने के लिए हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें। हम इंशाअल्लाह इस हुकूमत को भगाएंगे, इस हुकूमत को बावर करवाएंगे कि आप जो काम कर रहे हैं आवाम को, वो आपकी पॉलिसियाँ इंतहाई नुकसान पहुँचा रही हैं। हम इन पॉलिसियों के अगेंस्ट हैं। हम अपना एहतजाज जो है पुरअमन एहतजाज इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर हम ये बताएंगे कि हमारा हक जो है वो हम लेना भी जानते हैं। जिस हवाले से मियां ताहिर जमील एमपीए का दावा है कि जो तारीख की सबसे बड़ी रैली निकाली जाएगी। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबर टैक्सिंग में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियां बनाने वाले हो जाएं होशियार। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी ने बगैर इजाजत तामीरात करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। आपको बताएं, टोबर टैक्सिंग में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियां बनाने वाले हो जाएं होशियार। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी ने बगैर इजाजत तामीरात करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। बात करते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, टोबर टेक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी की इजाज़त के बगैर तामीरात करने वाले अफराद की शामत आ गई है। ऐसे अफराद जो मंजूरी के बगैर, नक्शे मंजूर करवाए बगैर तामीरात कर रहे हैं, उनके खिलाफ बाकायदा क्रैक डाउन का आगाज़ किया गया। इसी हवाले से म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर तौसीफुर रहमान गुजर ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और ऐसे अफराद जो कानून से तजावज़ कर रहे हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से अब तौसीफुर रहमान गुजर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि क्या करने जा रहे हैं शहर में, शहर की बेहतरी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हमें डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से भी हदायत मसूल हुई हैं। तो म्यूनसिपल कमेटी की हदूद के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उनको फौरी रोका जा रहा है। उन लोगों को नोटिस इशू कर दिए गए हैं और जिन लोगों ने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन की है तो उनको जुर्माने किए जा रहे हैं। तो इस मामले में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुकम्मल जो एक है क्रैकडाउन जिसका आगाज़ कर दिया गया है, वो उसके तहत लोगों को जुर्माने करके और बिल्डिंग्स को सील कर दिया जाएगा। सर, क्या समझते हैं कि ऐसे अफराद जो नक्शे मंजूर नहीं करवाते हैं, इससे बिलाशुबा म्यूनसिपल कमेटी का रेवेन्यू भी खासा कम होता है, इस हवाले से भी खास कोई अपनी प्लानिंग तश्कील दी है? जी बिल्कुल, हमारी टीम इस पे काम कर रही है और हमने पिछले 1 से 2 महीनों के अंदर काफ़ी बिल्डिंग्स को जो है फाइन्स भी किए हैं और इसके अलावा सील किया गया है। तो हमारी यही प्लानिंग है कि जो एक सेट क्राइटेरिया है बिल्डिंग्स का, उसको फॉलो करवाया जाए। जी बिल्कुल, टोबर टेक्सिंग में किसी भी शख्स को जो है वो गैर कानूनी तामीर करने की इजाज़त नहीं होगी। नक्शा मंजूर करवाएंगे तो इमारत तामीर कर सकेंगे। इस हवाले से चीफ ऑफिसर तामीरात की इजाज़त नहीं मिलेगी। मुबशर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में नादहिंदगान से गुज़िश्ता सालों के वाजिबात की रिकवरी दर्दे सर बनकर रह गई। टैक्स डिफॉल्टर्स के जिम्मे 7 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम वाजिबुल अदा है, मगर एक्साइज वसूली न कर सका। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में नादहिंदगान से गुज़िश्ता सालों के वाजिबात की रिकवरी दर्दे सर बनकर रह गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए नादहिंदगान से वाजिबात की जो रिकवरी है वो दर्द सर बन कर रह गई है। फैसलाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 1500 से ज़ायद ऐसे नादहिंदगान हैं जिनके ज़िम्मे करोड़ों रुपए के वाजिबात हैं। 6 करोड़ रुपए से ज़ायद के वाजिबात इन नादहिंदगान के ज़िम्मे हैं, जो कि गुज़श्ता कई सालों से वाजिबुल अदा हैं, मगर ना तो इन अफराद की जानिब से वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया गया और ना ही महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन इस हवाले से इन डिफ़ॉल्टर से रिकवरी कर सका है। दूसरी जानिब एक्साइज हुकाम कहते हैं कि ऐसे वो तमाम अफराद जिनके ज़िम्मे प्रॉपर्टी टैक्स की मद में बकाया जाते हैं उनको नोटिस भिजवा दिए गए हैं, जबकि महकमा एक्साइज के पास इख्तियार है कि वो जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, नादहिंदगान हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर सकेगा, कुर्क कर सकेगा। नोटिस पर अमल दरामद न होने पर। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में स्पेशल एहसास बाजार का कयाम। शहरियों को गर्म कपड़ों की मुफ्त फराहमी का जायजा लेने के लिए डायरेक्टर अपैरल सदाकत लिमिटेड हमजा मुख्तार ने एहसास बाजार का जायजा लिया। कहते हैं बाजार को फॉल करने के लिए दीगर सनतकारों को भी ऑन बोर्ड लिया है। कपड़ों की फराहमी का अमल जारी रखा जाएगा। बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से स्पेशल एहसास बाज़ार जो है वो लगाया गया है, जिसमें इस शदीद मौसम को मद्देनज़र रखते हुए गर्म मलबूसात, शूज़, रज़ाइयाँ और दीगर चीज़ें जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। और इस हवाले से फैसलाबाद के सनतकार जो हैं वो खसूसी सताइश के काबिल हैं कि उनकी जानिब से भरपूर ताउन किया गया। सदाकत लिमिटेड हो या इसके साथ साथ दी लीगेसी ग्रुप हो, MK सन्स हो या कमाल ग्रुप हो और दीगर जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से भरपूर ताउन नज़र आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त सदाकत लिमिटेड से हमजा मुख्तार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सब ये बताइएगा, यकीनन बड़ी अच्छी काविश है, कब तक ये सिलसिला जो है और ये ताउन जो है वो आपकी जानिब से जारी रखा जाएगा ताकि जो फैसलाबाद के मुस्तहिक अफराद हैं उनको जो रिलीफ मिल सके? जी, प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे एहसास बाज़ार जो है वो डिफरेंट डिवीजन में सेटअप किए जा रहे हैं। इसी तरह पहले मुल्तान में किया गया था और पूरे पाकिस्तान में अब दूसरा जो है वो फैसलाबाद में किया गया है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद साहब के साथ मिलकर और असिस्टेंट कमिश्नर AC सिटी फैसलाबाद साहिबजादा यूसुफ के साथ मिलकर हमने ये सेटअप किया है। 10,000 से लेके 20,000 लोगों तक और 40 to 50 मिलियन रुपीज़ की वैल्यू का हमने यहाँ पे स्टॉक जो है वो इनको प्रेजेंट किया जो ये लोगों को दे सकेंगे। इसमें हमारे डिफरेंट भाइयों ने हमारी हेल्प की है, जिसमें यासीन साहब हैं फ्रॉम लेगेसी ग्रुप, अनीक जावेद साहब हैं फ्रॉम MK सन्स। तो ये प्योरली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और ये इसकी मिसाल आगे भी आने वाली है। मतलब कि ये पहला प्रोजेक्ट है, हमने इससे पहले भी किए हैं पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर भी, तो अब करंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर और भी ऐसे हम
काफ़ी प्रोजेक्ट जो है वो करेंगे ताकि इसमें हमारे शहर की और फैसलाबाद की जो है वो बेहतरी हो सके। जी बिल्कुल, हमारे साथ लीगेसी ग्रुप से चौधरी यासीन साहब भी मौजूद हैं, से बात करेंगे। यासीन साहब बताइएगा क्या कहना चाहेंगे हुकूमत की इस काविश से की हवाले से? ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है। ये इनिशियली जो बाजार है डीसी साहब ने 1 हफ्ते के लिए लगाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के जैसे बाकी दोस्त हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा ताउन करेंगे और इसको ज़्यादा दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, उनका कहना है कि भरपूर हम ताउन करेंगे। ज़िला इंतजामिया की छतरी जो है वो मुयसर रही तो फैसलाबाद के शहरियों को गर्म कपड़ों की मुफ्त फराहमी का सिलसिला जारी है। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, हुकूमत का टीबी के मुतासरा मरीजों के इलाके में शहरियों की स्क्रीनिंग करने का फैसला। मोबाइल वैन में एक्सरे और जीन एक्सपर्ट मशीन की सहूलत मुयसर होगी। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब ने महकमा सेहत से हसास इलाकों की फहरिस्त तलब कर ली। अहम खबर से आगाह करें, हुकूमत का टीबी के मुतासरा मरीजों के इलाके में शहरियों की स्क्रीनिंग का फैसला। मोबाइल वैन में एक्सरे और जीन एक्सपर्ट मशीन की सहूलत मैसर होगी। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब ने महकमा सेहत से हसास इलाकों की फहरिस्त तलब कर ली। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा कब से स्क्रीनिंग का अमल शुरू किया जा रहा है? बिल्कुल, अभी तो हुकूमत की जानिब से जो है वो रिपोर्ट तलब की गई है कि उन इलाकों से मुतलिक जो है वो आगाह किया जाए कि किन इलाकों में जो है वो स्क्रीनिंग कैंप लगाने की जरूरत है। और इस सिलसिले में जो पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है उनकी जानिब से बकायदा एक मोबाइल वैन भिजवाई जाएगी। मोबाइल वैन में एक्सरे की सहूलत होगी, उसके साथ साथ जीन एक्सपर्ट की जो है वो सहूलत होगी। और जिन इलाकों में टीबी के मरीजों की तादाद ज़्यादा है उन इलाकों में जाके जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी और वहाँ पे एक्सरे और जीन एक्सपर्ट की जो सहूलत है वो मरीजों को फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ जारी करता मुनासिब महकमा सेहत को यह भी कहा गया है कि मोबाइल वैन को किसी महफूज जगह पे रखने के लिए जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है उनसे मुतलिक भी जो है आगाह किया जाए और इनके लिए मुनासिब जगह का बंदोबस्त किया जाए। और इस सिलसिले में महकमा सेहत का कहना है कि जल्द जो रिपोर्ट है वो पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को भिजवाई जाएगी, जिसके बाद फिर स्क्रीनिंग का अमल जो है वो शुरू होगा। अज़ादार, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ज़रियाब साजिद की जानिब से नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले और रेट लिस्ट आवेजा न करने वाले कसाबों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी। 4 कसाबों को 15,000 के करीब जुर्माने आयद किए गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा अब तक कितनी कार्रवाई की गई है? असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद की जानिब से नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले कसाबों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मेरे साथ मौजूद भी हैं। ये सब बताइएगा कितने कसाबों को जुर्माना किया गया है और क्या कहेंगे इस कार्रवाई के बारे में? जी बिल्कुल, हमने पूरी तहसील कमालिया में जितने भी कसाब हैं उन पे आज उनको इंस्पेक्ट किया है और जहाँ पे जायद रेट पे गोश्त बेचा जा रहा था ना सिर्फ हमने वहाँ पे जुर्माने किए हैं बल्कि सख्त वार्निंग भी दी है। बहुत सारे ऐसे कसाब थे जिन्होंने रेट लिस्ट आवेज़ा नहीं की हुई थी, हमने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है और फिर फाइन भी किया है और इंशाल्लाह ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी कि असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद की जानिब से नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले जो कसाब हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी हदायत जारी की जा रही हैं कि रेट लिस्ट है उसको आवेज़ा किया जाए ताकि जो है हर खास आम को पता चल सके। शुक्रिया, आप हमें अपडेट करें। चिन्योट में पोस्ट ऑफिस इंतजामिया शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। पोस्ट ऑफिस चिन्योट में UMS ड्राइविंग लाइसेंस, रसीदी टिकट, डॉक रजिस्ट्री टिकट समेत दीगर टिकटों का स्टॉक ताहाल ना पहुंच सका। शहरी टिकटों के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, साल 2022 आ गया लेकिन पोस्ट ऑफिस में टिकटें ना आ सकी। देखा जा सकता है कि पोस्ट ऑफिस और इसके अलावा दीगर जो मुख्तलिफ तहसीलों के पोस्ट ऑफिस हैं वहाँ पर टिकटें ख़त्म होने के बायस एक तो रजिस्ट्री का निज़ाम जो है वो खैर फाल हुआ पड़ा है, दूसरी जानिब ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से शहरी जो है वो ज़िलो खार हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ अदवार में पोस्ट ऑफिस का रुख करते हैं लेकिन टिकटें ना होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत का सामना है। सर बताइए कि पोस्ट ऑफिस में टिकटें ख़त्म है, क्या मसाइल दरपेश? बेसिकली बात यह है कि जब से ये गवर्नमेंट तब्दीली सरकार आई है ना तो आवाम को एक लम्हे के लिए भी रिलीफ ना मिल सका। अगर महंगाई की सूरत हाल देख ली जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल देख ली जाए, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को देख लिया जाए तो कहीं से भी कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं ये गवर्नमेंट आने दे रही। अब टिकटों का जो मामला है, टिकटें नायाब हैं और नापैद हैं।
किसी जगह से भी टिकट नहीं मिल रही, यूएमएस में प्रॉब्लम आ रही है, जो डाक कोरियर चीज़ें जाती हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने होते हैं उन पर टिकटों की ज़रूरत होती है, वो स्टॉपेज हुई पड़ी है, और जितने मामलात इन टिकटों से रेलिवेंट हैं उनमें स्टॉपेज आई पड़ी है। वैसे भी तब्दीली सरकार तो हर काम में स्टॉपेज लगा चुकी है, तो हमारा तब्दीली सरकार से एक ही मुतालबा है, बराए मेहरबानी करके जल्द अज जल्द टिकटों का जो मामला है उसका तदारुक किया जाए, और जल्द अज जल्द मेहरबानी फरमा के साइलिन को और आम जो लोग हैं उनको ये सहूलत बाहम जल्द अज जल्द पहुँचाई जाए। बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस इंतजामिया की मुबैना अदम तवज्जी है कि पोस्ट ऑफिस में टिकटें ख़त्म हो चुकी हैं, जिसके बायस शहरी ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। साल 2022 आ चुका है, लेकिन पहले ही माह देखा जा रहा है कि शहरी ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। इस वक्त शहरी का यह मुतालबा है कि टिकटों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, सहूलियात फराहम की जाए। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शकील अहमद और सिविल जज साजिद बिलाल का सेंट्रल जेल फैसलाबाद का दौरा। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल चौधरी असगर के हमरा जेल अस्पताल का मुआयना किया और इंतजाम का जायजा लिया। असीरान के लिए बनाए गए किचन का भी दौरा किया और खाने के मयार का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शकील अहमद का मामूली नौयत के जराइम में मुलव्वस 22 कैदियों की रिहाई का हुक्म। एडिशनल एंड सेशन जज ने NRTC कंट्रोल रूम का दौरा किया और कैमरों से जेल की मॉनिटरिंग की। एडिशनल एंड सेशन जज शकील अहमद और सिविल जज साजिद बिलाल ने कैदियों के फैमिली रूम्स का भी जायजा लिया। दोनों जजेस ने जेल इंतजामिया के तमाम इंतजाम को सराहा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू राना वकार अली का चिन्योट का दौरा। टैक्स हाउस चिन्योट की नई इमारत का इफ्तिताह किया, ताजरों वकला के नुमाइंदों से मुलाकात की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार, आगाह कीजिएगा। आज कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जंग जोन राना वकार अली ने आज टैक्स हाउस चिन्योट का विजिट किया है और टैक्स हाउस चिन्योट की जो नई इमारत है उसका इफ्तिताह भी किया है। इसके साथ साथ चिन्योट की जो ताजर बरादरी है, जो वकला हैं टैक्सेशन के हवाले से, उनके साथ भी मुलाकात की है। ADLRs हैं जो ज़िला के, उनसे भी मुलाकात की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि चिन्योट में ताजर बरादरी को जो मसाइल दरपेश हैं, खासतौर पर POS के हवाले से, इसके हल के लिए क्या किया जा रहा है और अब तक कितने POS इंस्टॉल हो चुके हैं। सर, चिन्योट में खासतौर पर ताजर बरादरी ने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके सामने रखे हैं, इनको किस तरह हल किया जाएगा? देखें जी, आज जो मेरा विज़िट है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली ये POS के लिए था और मुझे ये खुशी हुई है, पहले भी हमारी ताजर बरादरी से मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन आज मैंने देखा है कि POS की जो एक्सेप्टेंस मुझे नज़र आई है ताजर बरादरी में, लोग बिल्कुल पहले थोड़ा सा अपने आप को एलियन फील कर रहे थे, अब बड़ा कंपैटिबल नज़र आ रहे हैं वो, और उनके जो सवालात हैं और जो बाकी बातें हैं, तो मुझे तो उनमें जज्बा नज़र आया है। स्पेशली जब से ये अनाउंस हुआ है हमारा जो स्कीम है कुरानदाजी की और इनामात की, तो ताजर बरादरी ने भी इसको बड़े पॉजिटिव अंदाज से लिया है। और मेरा तो ये ख्याल है कि जब ये कल इंशाल्लाह पहली कुरानदाजी हो जाएगी और इसके बाद एक आध और कुरानदाजी हो जाएगी जब, तो ये कंपटीशन शुरू हो जाएगा। हर ताजिर ये कहेगा कि मैंने POS पे आना है, और आज भी उनसे यही बात हुई है कि आप जल्द ही सब लोग इंशाल्लाह POS पे आ जाएंगे, और ज़्यादा उनकी कोशिश ये होगी कि हम जल्द इसमें आएँ, क्योंकि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसने मार्केट में ढूंढना है उस शॉप को जो जहाँ पे उसे पक्की रसीद मिलती है, क्योंकि जो पक्की रसीद है वो एक चांस है विन करने का, तो कोई भी कस्टमर जो है वो उसे डिप्राइव होना नहीं चाहेगा। थैंक यू। ऐसे ताजर जो इस वक्त आपको टीवी पे देख रहे हैं और उन्होंने POS नहीं लगवाया, उनके लिए क्या आप पैगाम देंगे, क्या पेनल्टीज उनको डाली जा सकती हैं? देखें, दो चीज़ें और भी हमने यहाँ डिस्कस की हैं। एक तो ये चीज़ डिस्कस की है कि जो लोग POS लगवा चुके हुए हैं लेकिन वो पक्की रसीद यानी कि FBR के इनवाइस जो है नंबर वाली वो नहीं इशू कर रहे, उनके लिए भी हमने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि जो लोग ये कर रहे हैं, ये सिंपल बात नहीं है, ये टैक्स फ्रॉड है और इसकी हम इसमें गिरफ्तारी भी है, इस पे सज़ा भी है, कैद भी है, और हम किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ को इन्फोर्स करना हमारी जिम्मेदारी है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रायोरिटी है वो POS की कामयाबी है। अगर हमने इसे सही तरह इन्फोर्स ना किया तो ये स्कीम कामयाब नहीं हो सकेगी।
चुनाचे मैंने बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया है कि जो लोग इस पे अमल नहीं करेंगे और इसको होर्डिंग करेंगे कि POS तो लगा हुआ है लेकिन साइड से वो रसीदें चल रही हैं, तो उस पे हम मैक्सिमम जो भी लॉ ने उनके ऊपर सज़ा रखी है वो हम पूरी अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। आज बिल्कुल टैक्स फ्रॉड करने वालों के खिलाफ जो कानूनी तौर पर सख्ती के साथ निपटा जाएगा और इसके साथ कस्टमर्स हैं वो भी ऐसी शॉप पर जाएं जहां पे POS इंस्टॉल हुआ है और उससे दुकानदार से मुतालबा करेंगे। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की फेस्को हेडक्वार्टर्स में ऑनलाइन खुली कचहरी। फेस्को चीफ ने सार्फिन के मसाइल सुने। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद का कहना है जल्द फेस्को में मीटर्स की कमी पूरी हो जाएगी। बात करते हैं अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। आज ही बिल्कुल फेस्को हेडक्वार्टर में चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की जानिब से ऑनलाइन खुली कचहरी जो है वो लगाई गई और सार्फिन के मसाइल सुने गए। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इस वाले सुनकर क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आज आपने ऑनलाइन खुली कचहरी लगाई है, किस तरह के मसाइल जो है वो सार्फिन की जानिब से रखे गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी जो आज हमने ऑनलाइन कचहरी शुरू की है, ये सिलसिला हमारा सर्कल लेवल पे भी, SC भी अपने लेवल पे हर महीने में 1 से 2 या 3 खुली कचहरी करते हैं। तो मैंने अभी ये 11 बजे हमारी ऑनलाइन कचहरी शुरू हुई थी। इसमें ज़्यादातर कंप्लेंट्स हैं न्यू कनेक्शंस की। तो मीटर हमारे आ गए हैं 25,000, 17,000 पहले आ गए थे, 25,000 आज पहुंच रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी कंप्लेंट जो है विद इन 2 to 3 डेज जो है रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ज़्यादातर न्यू कनेक्शंस की हैं। फेलियर ऑफ सप्लाई की कोई ऑलमोस्ट निल है हमारी सप्लाई। अच्छा सर, 25 kV के ट्रांसफार्मर्स का इशू बना हुआ था, तो वो ट्रांसफार्मर्स आ रहे हैं, आज आ गए हैं, तो कितने आ गए? हमारे पास ना 50 kV के ट्रांसफार्मर और 200 kV के पहुँच रहे हैं 2 दिन बाद। बाकी जो 25 kV के ट्रांसफार्मर की इंस्पेक्शन हो गई है वो बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट फ्राइडे हमारे तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद कनेक्शन लगने शुरू हो जाएंगे। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि सार्फिन के मसाइल के हल के लिए ऑनलाइन खुली कचहरी का इनकाद किया गया और नए मीटर्स भी जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद का कहना है कि फेस्को में आ रहे हैं और नए ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं और 25 kV के ट्रांसफार्मर्स भी जल्द जो है वो खरीदे जाएंगे ताकि सार्फिन के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनकाद किया गया। वैसे अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के नौमुंतखब ओहदेदारान ने चार्ज संभाल लिया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार बिलाल अशरफ बसरा का कहना है कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के क़याम और साइलिन को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए इकदाम किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। 8 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट बार के 2022-23 के सालाना इंतखाबात हुए थे, जिसके बाद आज जो नई मुंतखब होने वाली बॉडी है उनकी जानिब से चार्ज संभाल लिया गया। हमारे साथ सदर डिस्ट्रिक्ट बार बिलाल अशरफ बसरा साहब मौजूद, हमसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह चार्ज संभाल लिया, मुंतखब हो चुके हैं, तो क्या आपके राय? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल से हम इंतज़ामिया, जुडिशरी सब के साथ मिलकर लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, हक के साथ खड़े होंगे, मजलूम की मदद करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। 1.5 करोड़ आवाम का ये ज़िला है, ये डिवीज़न है, तो इसमें हमारी जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ हमें हाई कोर्ट बेंच के लिए जो वो हमारे लिए हमें मदद करें और उसका क़याम जो है उसको लाजमी लाया जाए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत है। हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, मजलूमों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। बेंच का मुतालबा जो है अरसा दराज से चला आ रहा है, तो उसे मनवाने के लिए जो इकदाम किए जाएंगे। इसके अलावा जो वकला के मसाइल हैं उन्हें तरजीह बना फैसिलिटेट किया जाएगा। आज़ादार, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। को बताएं, चिन्योट थाना जात में तैनात कौमी रजाकारों को TA बिल देने के लिए DPO ऑफिस में तकरीब मुनक्किद हुई। DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद रमजान ने कौमी रजाकारों में TA बिल के चेक तकसीम किए। मजीद बात करते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, थाना जात में जो कौमी रजाकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं उनमें TA बिल तकसीम करने के हवाले से DP ऑफिस में एक तकरीब का जो है वो अहतमाम किया गया, जिसमें DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद रमज़ान की जानिब से जो कौमी रजाकार हैं उनमें TA बिल के चेक जो है वो तकसीम किए गए हैं। तकरीबन 120 के करीब जो रजाकार हैं उनमें 9 लाख रुपये से ज़ायद के TA बिल जो है वो TA बिल के जो चेक हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं। और इस सिलसिले में जो DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद रमज़ान है उनका कहना था कि जो कौमी रजाकार हैं वो पुलिस फोर्स का अहम हिस्सा हैं और इसके साथ साथ जो ही जिस तरह पुलिस जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, पुलिस के शाना बशाना ये कौमी रजाकार भी जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, जिस पर उन्हें जो है वो सराहा गया है और उनमें TA बिल के चेक जो है वो बिल के चेक तकसीम कर दिए गए। इसी तरह DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद रमज़ान की जानिब से उन्हें ईमानदारी तनदेही से अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देने की हिदायत की गई है। और DSP हेडक्वार्टर का ये भी कहना था कि जो कौमी रजाकार हैं वो चूँकि पुलिस फोर्स का
मुतल्लिक हैं और उनकी वेलफेयर का हर तरह से जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ DSP हेडक्वार्टर की जानिब से उन्हें जो फ़राइज़ हैं वो भी ईमानदारी के साथ सर अंजाम देने की हिदायत की है। बाबर शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं चिन्योट थाना जात में तैनात कौमी रजाकारों को TA बिल देने के लिए DPO ऑफिस में तकरीब का एहतमाम किया गया। DSP हेडक्वार्टर्स मोहम्मद रमजान ने कौमी रजाकारों में TA बिल के चेक तकसीम किए। मुगियाना क्रिकेट क्लब और दीवान क्रिकेट क्लब की टीमों के माबैन दोस्ताना क्रिकेट मैच। दीवान क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 199 रन बनाए। आपको अपडेट कर रहे हैं मुगियाना क्रिकेट क्लब और दीवान क्रिकेट क्लब की टीमों के माबैन दोस्ताना क्रिकेट मैच। दीवान क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 199 रन बनाए। मैच का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम अहमद से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी, मुगियाना क्रिकेट क्लब और दीवान क्रिकेट क्लब की टीमों के माबैन दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। इसमें माई हिर क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में दीवान क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 199 रन जो थे वो बनाए, जिसमें शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए शुएब दीवान ने सबसे ज़्यादा 71 रन स्कोर किए, जबकि नवीद ने 43 और शफीक ने 38 रन जो थे वो स्कोर किए। जबकि मुगियाना क्रिकेट क्लब की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए शाहिद मुगियाना ने 3, जबकि सफ़ीर अहमद, वहीद मलिक और इब्राहिम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। अब हदफ के ताक़ुब में मुगियाना क्रिकेट क्लब की 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 4 ओवर्स में 31 रन पर ताहाल बैटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। जी वसीम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41।